Good afternoon, class. In last class, we was discussing about psychotherapies, sorry, physical therapies. So in the physical therapies, I told you, first one is the electroconvulsive therapy. Second one, yeah, ECT. Second one is the insulin coma therapy, yeah, insulin therapy, yeah, insulin shock therapy. All are the same. So now, this today we will discuss about the psychosurgery. So before discussing about the psychosurgery, I told you in the previous classes I told you कि मेंटल डिसऑर्डर्स है मेंटल इलनेस का जो ट्रीटमेंट होता है वो फर्स्ट वन इज द साइकोफार्माकोलॉजी के बेस पर होता है. फर्स्ट वन इज द साइकोफार्माकोलॉजी. सेकंड इज द साइकोथेरेपी. थर्ड वन इज द फिजिकल थेरेपी. Last was the psychosurgery. So in the psychopharmacology, I told you the treatments of the mental disorders are done through the use of the different types of the medications. Yeah, psychotropic drugs. It is known as the psychopharmacology. यानी कि psychopharmacology क्या है? Psychopharmacology it is the treatment modalities in which the treatments of the mental disorders are done through the psychotropic drugs जैसे कि antipsychotics है, antidepressants है, antimanic है, whatever. Second was the psychotherapies. When the psychotherapies, the terms that treat the mental disorders of the mental, when the treatments of the psychotherapies, the use of the psychological methods by the psychotherapist for the treatments of the psychiatric illness. जब psychological methods का या psychotherapeutic methods are used to treat the mental disorders या mental illness, then it is known as the psychotherapy. Second one is the physical psychotherapies में हमने देखा इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्ले थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी है, लाइट थेरेपी है, व्हाटएवर. नाउ आफ्टर इट वी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल थेरेपी. सो इन द फिजिकल थेरेपी आई टोल्ड यू फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. फर्स्ट वन इज द ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या इलेक्ट्रिक shock therapy. Second one is the electric shock therapy. Second one is the insulin therapy. We have already discussed about in the previous classes about the ECT, electroconvulsive therapy, electric shock therapy, insulin shock therapy. Now today we will discuss about, in this class we discussed about the psychosurgery. In the psychosurgery, when the psychosurgery is the treatments of the use of neurosurgical procedure to modify the symptoms of psychiatric illness. यानी कि when the psychosurgery is the use of neurosurgical procedure to modify the symptoms of the psychiatric illness. यानी जब किसी भी न्यूरोसर्जिकल की प्रोसीजर्स के द्वारा साइकेट्रिक इलनेस को रिकवर किया जाता है या मेंटल इलनेस को रिलीव किया जाता है या उसके सिम्टम्स को रिलीव किया जाता है तो इट इज नोन एज द साइकोसर्जरी. इट इज फर्स्ट ऑपरेशन या साइकोसर्जरी. इट इज फर्स्टली introduced by the it is firstly done by the Swiss psychiatrist यूगिस मोन्स इन द 1936. यानी कि सबसे पहले 1936 में यूगिस मोन्स के द्वारा इसको डन किया गया. यानी सबसे पहले जो साइको सर्जरी था इट इज फर्स्टली डन बाय द यूगिस मोन्स इन 1936. It is also known as standard prefrontal leucotomy and the other types of the brain surgery. So yeah, we can say the psychosurgery क्या है? It is the type of the brain surgery to use the mental disorders या mental treatments. यानी कि psychosurgery क्या है? Psychosurgery is the type of the surgery that are brain surgery that are used to treat the mental disorders या mental illness. First one. So second definition क्या है?
Second definition of the psychotherapy, psychosurgery is it is the neurosurgical procedure to modify the symptoms of the psychiatric illness and the modify the symptoms of the psychiatric illness. First one. Second one is the purpose of psychosurgery. Next one is the purpose of psychosurgery. So first one is the to have the selective destructions of the connective and the nerve fiber tissues, यानी कि जो नर्व फाइबर टिश्यूज के बीच में जो डिस्ट्रक्शंस हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए फर्स्ट वन इज द एलिवेट द मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि इन द केस ऑफ द या रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर लाइक इज द मेनिया, मेजर डिप्रेशंस, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और द ओसीडी, यानी कि इन द केस ऑफ द डिप्रेशंस, ओसीडी, bipolar disorders, whatever. Next was the to treat the chronic pain in the cancer patient. यानी कि second one is the purpose, yeah, we can say the indications of the psychosurgery. These are the first one is for correct the connectivity nerves, जो nerves की connectivity है उसको correct, destructive जो nerve connectivity है उसको correct करने के लिए. Second one is the in the case of the OCD, obsessive compulsive disorder, major depressions, bipolar disorders, mania, whatever. Third one, it is provided in the case of the chronic pain या treatments of the chronic pain या cancer. यानी कि कौन-कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? First one is the correct the destructive connective fibers. First one. Second one is the in the case of depression. Third one is the bipolar disorder. Next one is OCD. Five is the severe pain, and next one is severe and chronic pain, and next one is the cancer. These all are the indications in which a purpose in which psychosurgery are provided to the patients. First one is the करेक्ट डिस्ट्रक्टिव कनेक्टिव फाइबर, जो हमारे कनेक्टिव फाइबर्स है जब उनके बीच में डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए, जो नर्व फाइबर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए. फर्स्ट वन इज द फॉर द मेंटल डिसऑर्डर सच एज द मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी. नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट्स ऑफ द क्रोनिक पेन एंड लास्ट वाज द कैंसर. इन दिस कंडीशंस इट इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स. नेक्स्ट वाज द टाइप्स ऑफ psychosurgery. Next the types. So first one psychosurgery is the lobotomy. तो कौन-कौन सी सर्जरी है? फर्स्ट वन इसमें आपका लोबोटोमी है. So lobotomy is the surgical incision in which into the prefrontal lobe of the brain, यानी कि जो prefrontal lobe होता है ब्रेन का उसको सर्जिकल इंसिजन के द्वारा जब उसका सर्जिकल इंसिजन किया जाता है यानी कि उसके पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है तो इट इज नोन एज द लोबोटोमी. यानी कि लोबोटोमी क्या है? इट इज द सर्जिकल इंसिजन इनटू द प्रीफ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की प्रीफ्रंटल लोब होती है उसमें जब सर्जिकल इंसिजन किया जाता है यानी सर्जरी के द्वारा उसके उस पार्ट्स को रिमूव किया जाता है तो इट इज नोन एज द लोबोटोमी. इट इज मेनली ट्रीट द मेंटल इलनेस. सेकंड वन इज द फर्स्ट वन इज द लोबोटोमी, सेकंड वन इज द सिंगुलोटोमी. सिंगुलोटोमी सेकंड सर्जरी जो है इट इज वाज द सिंगुलोटोमी. इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1948. सबसे पहले इसको 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया. इन दिस in which electrical currents is used to destroy the cortex of the cingulate gyrus and the part of the
कार्पस कैलोसम। यानी कि सिंगुलोटोमी के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको 1948 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो जो ब्रेन का कार्पस कैलोसम पार्ट है उसमें दिया जाता है फॉर यूज द कॉर्टेक्स। तो कुछ कॉर्टेक्स पास जो कार्पस कैलोसम के अंदर जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। इट इज मेनली गिवन इन द केसेस ऑफ द डिप्रेशन फर्स्ट वन, और सेकंड वन इज द ओसीडी। यानी कि ओसीडी के केस में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के केस में, और डिप्रेशन के केस में इसको दिया जाता है। ये सिंगुलोटोमी है, ये 1948 में इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में बताया गया। इट इज गिवन टू, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट्स के द्वारा जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, या कार्पस कैलोसम है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि डिस्ट्रॉय द कॉर्टेक्स ऑफ द सिंगुलेट गार्गेरस एंड द पार्ट ऑफ द कार्पस कैलोसम। यानी कार्पस कैलोसम के कुछ पार्ट को उसमें डिस्ट्रॉय किया जाता है और कुछ पार्ट को उसमें डिस्ट्रॉय कॉर्टेक्स का भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। थर्ड वन इसमें है एमाइग्लोटोमी। एमाइग्लोटोमी, इसमें क्या होता है, इट इज द सर्जिकल रिमूवल और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ एमिगडाला फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ द वायलेंट पेशेंट। यानी कि इसमें जो एमिगडाला पार्ट होता है ब्रेन का, एमिगडाला जो पार्ट होता है उसका कुछ पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है, और इट इज मेनली यूज्ड इन द केस ऑफ द वायलेंट पेशेंट। यानी कि जो वायलेंट पेशेंट्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द थैलेक्टोमी। थैलेक्टोमी, थैलेक्टोमी में क्या होता है, इट इज द ओपनिंग is made into the thalamus to improve the overall brain function जो into the patient। सबसे पहले इसको क्या हुआ, इसको 1950 में इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो थैलेमस पार्ट है उसको ओपन किया जाता है, जो भी ब्रेन की फंक्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए। थैलेक्टोमी में क्या होता है, इट इज द ओपनिंग ऑफ द मेड इनटू द थैलेमस। यानी कि थैलेमस पार्ट होता है बॉडी में, तो थैलेमस को ओपन किया जाता है जो भी ब्रेन की फंक्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द टेम्पोरल लोबेक्टमी। टेम्पोरल लोबेक्टमी, तो टेम्पोरल लोबेक्टमी क्या है, इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ब्रेन टू कंट्रोल द सीजर। यानी कि इट इज द ब्रेन टिश्यू टेम्पोरल लोब इज रिमूव्ड थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर। यानी कि सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए इट इज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल द सीजर। यानी कि टेम्पोरल लोबेक्टमी है, ये सीजर्स जो इंडिविजुअल के अंदर सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसको दिया जाता है। इसमें जो ब्रेन, जो टेम्पोरल लोब के जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन में जो टेम्पोरल लोब नाम का एक पार्ट है उसके जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनको सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। सो दीस ऑल आर अबाउट द टाइप्स ऑफ साइको सर्जरी। फर्स्ट वन इज द लोबोटोमी, सेकंड वन इज द सिंगुलोटोमी, नेक्स्ट वन इज द एमडिग्लोटोमी, नेक्स्ट वन इज द थैलेक्टोमी, नेक्स्ट वन इज द टेम्पोरल लोबेक्टमी। सबसे पहले हम बात करते हैं लोबोटोमी के बारे में। तो लोबोटोमी क्या है, इज द सर्जिकल इंसिजन इनटू द प्रीफ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। यानी कि जो ब्रेन के अंदर प्रीफ्रंटल लोब का एक नाम का जो पार्ट होता है उसका सर्जिकल इंसिजन किया जाता है, या उसका कुछ पार्ट्स को रिमूव किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस। Second one is the सिंगुलोटोमी। सिंगुलोटोमी इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1948। इसको सबसे पहले 1948 में इसके बारे में बताया गया। सेकंड वन इज द, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट्स है वो पास की इलेक्ट्रिकल करंट्स के द्वारा जो कॉर्टेक्स, ब्रेन का एक पार्ट होता है कॉर्टेक्स, उसको थोड़ा सा इंसिजन उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। सेकंड वन इज द, और कुछ पार्ट कार्पस कैलोसम, यानी कि कॉर्टेक्स पार्ट को और कार्पस कैलोसम के कुछ पार्ट्स को इलेक्ट्रिक करंट्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। It is mainly used in the treatments of the depressions and the OCD. I am again repeat about the simulotomy. Simulotomy introduced in the 1948 for the treatments of the depressions and the OCD. In this condition, electrical currents are passed into the brain for destroying the some parts of the corpus callosum and the some parts of the cortex of the brain.
नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन जो है एमाइग्राटोमी एम्ब्रोटोमी में क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रिगुला नाम का पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, जो एम्ब्रिगुला पार्ट होता है, तो इट इज द सर्जिकल रिमूवल एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एम्ब्रिगुला और पार्ट ऑफ द एम्ब्रिगुला, यानी कि एम्ब्रिगुला पार्ट होता है या सर्जिकल उसके कुछ पार्ट्स को या एम्ब्रिगुला को पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा। तो ये किसमें यूज किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वायलेंट पेशेंट्स। नेक्स्ट वन इज द जो नेक्स्ट टाइप्स है सर्जरी साइकोसर्जरी का इज द थैलेक्टोमी। तो थैलेक्टोमी है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1950 में इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट वन, इट इज द ओपनिंग, जो थैलेमस पार्ट है, थैलेमस पार्ट्स की ओपनिंग किया जाता है फॉर करेक्टिंग द मेंटल फंक्शनिंग, यानी जो मेंटल फंक्शनिंग है, उस जो ब्रेन की ओवरऑल फंक्शन है उनको इंप्रूव करने के लिए जब थैलेमस पार्ट की ओपनिंग की जाती है तो इट इज नोन एज द थैलेक्टोमी। लास्ट वाज द टेम्पोरल लोबेक्टोमी। टेम्पोरल लोबेक्टोमी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ द सीजर। इसमें क्या होता है, जो टेम्पोरल लोब के कुछ टिश्यूज को या ब्रेन टिश्यूज ऑफ द टेम्पोरल लोब्स आर रिमूव्ड थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर, यानी सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो ब्रेन टेम्पोरल रीजन के जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिसके द्वारा इंडिविजुअल के अंदर जो सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। सो प्लीज ऑल आर अबाउट द टाइप्स ऑफ साइकोसर्जरी। आई एम अगेन रिपीटेड, फर्स्ट वन इज द लोबोटोमी, सेकंड वन इज द सिंगुलोटोमी। लोबोटोमी फॉर द मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट्स के लिए, सिंगुलोटोमी फॉर द 1948 में डिस्कवर हुआ, ट्रीटमेंट्स ऑफ द डिप्रेशन एंड द ओसीडी। एम्ब्रिगुलाटोमी इसमें क्या होता है, एम्ब्रिगुला नाम का जो पार्ट इसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, वायलेंट पेशेंट्स के लिए इसको यूज किया गया। नेक्स्ट वन इज द थैलेक्टोमी, थैलेमस की ओपनिंग की जाती है फॉर द ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, इसको 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया। और लास्ट वाज द टेम्पोरल लोबेक्टोमी, इसको सीजर्स के कंट्रोल के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो टेम्पोरल लोब के अंदर जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो दीस ऑल आर अबाउट द टाइप्स ऑफ साइकोसर्जरी। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशंस में क्या है, कैंडिडेट्स फॉर द सिंगुलोटोमीज एंड द अदर टाइप्स ऑफ द साइकोसर्जरीज अंडरगो थ्रू द राइगर स्क्रीनिंग प्रोसेस। इसमें जब इसके लिए पेशेंट्स को प्रिपरेशन करना है, चाहे वो सिंगुलोटोमी हो या कोई सी भी साइकोसर्जरी हो, उसके लिए सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग प्रोसेस की जाता है। एमआरआई, सीटी स्कैन एंड अदर पॉसिबल नॉन सर्जिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैव एक्सप्लोर्ड। उसके अलावा कुछ अदर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे कि साइकोथेरेपीज हैं, फिजिकल थेरेपीज हैं, इसके अलावा साइकोटॉपिक ड्रग्स हैं, व्हाटएवर, इन सब के द्वारा डन किया जाता है। साइकोसर्जरी इज ओनली परफॉर्म्ड विद द पेशेंट्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि इसको जब भी किया जाता है जब पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट कर लिया जाता है। फर्स्ट वन, यानी कि इसकी जो प्रिपरेशन है, इसमें जो कैंडिडेट चाहे वो सिंगुलोटोमी हो, एम्ब्रिगुलाटोमी हो, थैलेक्टोमी हो, टेम्पोरल लोबेक्टोमी हो या व्हाटएवर एनी टाइप्स ऑफ द सर्जरी या सिंगुलोटोमी हो, तो एनी टाइप्स ऑफ द साइकोसर्जरी आर कंडक्टेड बिफोर से करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, राइगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस आर एंश्योर्ड। सबसे पहले स्क्रीनिंग प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ऑल पॉसिबल नॉन सर्जिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स ऑप्शन आर एक्सप्लोर। उसके बाद जो भी नॉन सर्जिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर है, जैसे कि फिजिकल थेरेपी है जिसमें ईसीटी और इंसुलिन कोमा थेरेपी है, इंसुलिन शॉक थेरेपी है। सेकंड वन इज द डिफरेंट टाइप्स की साइकोथेरेपी है, जिसमें मिल्यू थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, इसके अलावा फैमिली थेरेपी है, इंडिविजुअल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की साइकोटॉपिक ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी मैनिक्स है, मूड स्टेबलाइजर्स हैं, व्हाटएवर। जब इस after it psychosurgery is performed with the informed consent of the patient. So these all are about the psychosurgery. So now I summarize my topic. First is the intro about the psychosurgery. So in the psychosurgery, firstly it is given by the Swiss psychiatrist यूगस मून्स इन द 1938, यानी कि इसको सबसे पहले साइकोसर्जरी को के बारे में 1936 में यूगस मून्स के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया, इसको परफॉर्म किया गया। साइकोसर्जरी इज द टाइप ऑफ द ब्रेन सर्जरी टू ट्रीट द मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस। एक प्रकार की ब्रेन की सर्जरी होती है जिसके जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स को या मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए काम में आती है। सेकेंड वन इज द साइकोसर्जरी इज द यूज ऑफ
न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर टू मॉडिफाई द सिम्टम्स ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस, यानी कि जो साइकेट्रिक इलनेस है उसके सिम्टम्स को मॉडिफाई करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं दिस वन इज द साइको सर्जरी। नेक्स्ट वन इज द पर्पज, किस किस कंडीशन में दिया जाता है। फर्स्ट वन इज द इन द केसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव कनेक्टिव, जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं उनका जो उनकी जो कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होती है, तब साइको सर्जरी किया जाता है। मेजर डिप्रेशंस हैं, मेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, obsessive compulsive disorder, these all are the indications in which psychosurgeries are provided to the patients, या in the case of the severe या chronic pain या cancer patients। types of the psychosurgery, first one is the lobotomy, cingulotomy and vidulotomy, next one is the thalassotomy, last was the temporal lobectomy। इसका जो प्रिकॉशंस है, इसका जो प्रिपरेशन है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अदर इसमें इसको करने से पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करने के बाद जो अदर नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं, जैसे कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स का है या साइकोफार्माकोलॉजी के थ्रू है, साइकोथेरेपीज के थ्रू है, फिजिकल थेरेपीज हैं, इन सबको यूज करना चाहिए और इसके बाद रिटन कंसेंट लेकर के बाद ही इसको करना चाहिए। सो दीज ऑल आर अबाउट द साइको सर्जरी। सो it is all up, so now I summarize this unit standard। so in this units we discuss about the treatment modalities में हमने सबसे पहले डिस्कस किया साइको फार्माकोलॉजी के बारे में। साइको फार्माकोलॉजी में हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ा, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, मूड स्टेबलाइजर्स व्हाटएवर। नेक्स्ट वन इज द साइकोथेरेपीज के बारे में डिस्कस किया। साइकोथेरेपीज में मिल्यू थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, प्ले थेरेपी, फैमिली थेरेपी व्हाटएवर। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल थेरेपी, इसमें इंसुलिन थेरेपी, सेकंड इज द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, लास्ट वाज द साइकोसर्जरी। अदर इज द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, जिसमें योगा है, मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं व्हाटएवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सिजोफ्रेनिया। थैंक यू।